in this beautiful Vrindavan, looking over the Yamuna, looking at the most beautiful place of Sri Krishna's pastimes, where the Braj Raj is in abundant quantities, imprinted by the lotus feet of all the Brijvasis and the Parshadas of the Supreme Lord, as they are moving from Bansivat towards Sevakunja. In Vitala, Shringarvat, to all these transcendental places where the eternal pastimes are being manifested. Now here again, these pastimes have expanded once more in a very beautiful way, with so many devotees chanting and dancing virtually from all over the world, coming here by the grace of the Guru Deva to once again have Braj Mandal Parikrama, starting on Sharad Purnima, most auspicious full moon, where the full moon of Krishna Chandra has appeared in the form of Gopinath to glance upon us and to make our hearts feel the joy of shelter at the Sadhusanga, the whole entourage, the environment of Vrindavan, which is difficult to describe, even though in the Holy Scriptures great souls like Raghunath Das Goswami and others have elaborately given us a feeling of this Vrindavan Dham. And I just don't know how to say anything decent with this insignificant tongue and lips when it comes to such incredible topics. But it is just charming, and I'm so grateful that I can be here in such a moment, and that I can see all your smiling faces here, full of shraddha and utsaha for devotional service and appreciation. It's really something, you know. My fortune has no end because of that, and I simply wish to get the blessings of Radha Gopinath and Mahaprabhu, so that somehow or other I never lose the sight of the lotus feet of the Bhaktas. Because once there was a very interesting occurrence. I took one of my godbrothers, who I had met here, who had lost a lot of his face for some reason, but he had come to Vrindavan. And I asked him, do you want to meet a pure devotee? He said, what do you mean a pure devotee? The only pure devotee, Srila Prabhupada, is not with us. No, listen, please, come, I want to show you a pure devotee. So I took him to Srila Bhakti Pramod Puri Maharaj, who was staying at Sri Chaitanya Gaudiya at that time. And my godbrother was in a challenging mood, so he asked Srila Puri Maharaj, you're chanting now for 85 years the Maha Mantra. Puri Maharaj said, yes. What did you get from that? What benefit did you get from that? So much chanting. And I was feeling so ashamed. Why did I take this person to his church, Srila Puri Maharaj? But Srila Puri Maharaj didn't take it that way at all. He was dwelling upon the question, pondering, with very soft feelings emanating from him. And then he looked at him and he said, what I got from chanting all those years is the understanding that without the devotees, I'll be finished. And when he said that, my godbrother broke into pieces. He said, thank you for taking me to a pure devotee. He said, thank you. I could not believe it, but it's true. So, seeing the devotees of the Lord, seeing those who are year after year dedicated, year after year doing all these efforts to
take Chaitanya Mahaprabhu's message to every town and village in the world, publishing the most beautiful Vaishnava Grantha and making Krishna available again and again and again. This is what we are celebrating, that's what we are rejoicing here. And any moment, even a breach of a second, they say, sadhu sangha, sadhu shastra, even a breach of a second. What to speak of hearing a class from a Vaishnava who is only knowing Krishna as the one and all of his life, and to be in the association of them and taking the remnants of the food stuff, that gives us hope. I just heard another little story I want to share with you. A person read in Padma Purana very recently, which was so amazing. I got so much hope from that story. There was this one person, and it was a woman, and she was receiving the betel nut, and she was chewing the betel nut, and then all of a sudden she spit the betel nut like they do, and it fell on the Vishnu temple, on the wall, the spitting of the betel nut. So she didn't think much about it, but the night of that day, she left the body. It was a time to leave this world, and the Yamadutas came to get her. And while the Yamadutas were just about to take her, the Vishnu Dutas showed up. And they said, no, you can't take her. She said, well, why not? She's very simple. She has done many simple things in her life. Yeah, but you don't know. She decorated the Vishnu temple. So you have no more influence over her. But when I heard that, by the grace of my spiritual masters who are boundlessly merciful, Srila Prabhupada, Srila Bhakti-Rakshita Maharaj, all the Vaishnavas, I can feel that there's some hope, even for me. Thank you very much. ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरवे गौरचन्द्राय राधिकाय तदालय कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। वंशाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभैव च पतितानां पावनेभ्यो श्रीवैष्णवेभ्यो नमो नमः। नामयं विष्णुपादाय कृष्णप्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिप्रज्ञान केशवाय नामिने। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। बोल हरि कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। मैं सर्वप्रथम मेरे गुरुपाद ब्रह्मण्य प्रियलाभ विष्णुपाद आष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति श्री रूप सिद्धांत गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुदेव परिप्राजित आचार्य त्रिवेणी स्वामी श्रीमद भक्ति वेदांत
नारायण गोस्वामी महाराज को चरण सरोज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित त्रिदंडपालगण, वैष्णव वैष्णवी सभी को चरण में मेरा यथायोग्य प्रणाम। आज एक विशेष तिथि है, जिस तिथि को ये शरद पूर्णिमा है। आज का दिन श्री गौड़ीय वेदांत समिति के प्रतिष्ठाता नियामक नित्यलीला विष्णु विष्णुपाद अष्टोत्तर सदस्य श्री श्रीमद भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का तिरोधान महामहोत्सव है। मानो आज का दिन शारदीय रास है। मानो आज का दिन रासों में उनकी कुछ चीज के अभाव था, जिस अभाव के लिए मानो श्रीमती राधा रानी अपना एक प्रिय परिकर को अपना अभाव में ही जिनको बुलाया है, इसलिए आज उनको तिरोभाव महामहोत्सव। ये प्रभुपाद का इतने गण है, ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं है, क्योंकि प्रभुपाद ऊपर में श्रील भक्ति विनोद ठाकुर, श्रील गौर किशोर दास स्वामी महाराज, श्रील जगन्नाथ दास स्वामी महाराज, जो सब बहुत बड़े बड़े दायित्व देकर के जो गए थे, और वह दायित्व जब गुरुवर्ग लोग अंतर्ध्यान हो गए, प्रभुपाद बड़े दुखी होकर के मायापुर में सोच रहे हैं, ये गुरुवर्गों का आदेश को हम कैसे पूर्ण करें, माइक टेकन कैसे पूर्ण करें। उसी समय महाप्रभु अपना परिकरों के साथ में जितने सारे गुरुवर्ग प्रकट होकर के प्रभुपाद को आदेश, प्रभुपाद को दर्शन देते हैं। कहते कोई चिंता मत करो, तुम अकेला नहीं हो, इसलिए तुम्हारा पीछे मदद करने के लिए हम सबके सब तैयार हैं। केवल तुम प्रचार प्रसार शुरू करो, हम सबके सब अर्थबल जनबल हम सबके सब हम तुम्हारे लिए मदद करने के लिए भेज रहे हैं। इसलिए मानो ये महाप्रभु स्वयं प्रभुपाद को बोले, इसलिए इतने सारे प्रभुपाद का परिकर है, जैसे श्रीमान चैतन्य महाप्रभु सपार सदस्योधा सहावतरी, उसी तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी वो अकेले नहीं आए, स्वयं राधा रानी को निकुंज सेवा में श्री नयन मणिमंजरी जो उनको सेवा में नियुक्त थे, राधा रानी स्वयं आदेश करती है, तुम अकेले मत जाओ, तुम अपना संपूर्ण परिकरों को लेकर के जाओ। जैसे महाप्रभु एक एक भक्तों को द्वारा एक एक अपना मनोभीष्ट को उन्होंने स्थापन किया, उसी तरह श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद भी अपना मनोभीष्ट को एक एक शिष्यों को द्वारा देकर के सर्वत्र प्रचार और प्रसार करते हैं। जैसे श्रीमद महाप्रभु का जो भविष्यवाणी था, पृथ्वी से आशीर्वाद नगरादि ग्राम सर्वत्र प्रचार करियो मरना, यद्यपि यह काम को महाप्रभु ने अपना एक एक परिकरों को द्वारा वे उस चीज को स्थापन किया है, प्रचार प्रसार किया है। अगर यह चीज को संपूर्ण मुक्त प्रग्रह पृथ्वी में अगर दिखाई पड़ता है, हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बोलते हैं, ये श्रील भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ही महाप्रभु का यह वाणी को संपूर्ण रूप में जगत में स्थापन किया है। और उसी स्थापन में हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भी एक अन्यतम है, क्योंकि प्रभुपाद जो प्रचार प्रसार किया, उसके बाद में उनको शिष्य लोग उपयोग किए, और उसमें हमारे भक्ति वेदांत स्वामी महाराज भी जिस रूप में उन्होंने सर्वत्र जाकर के प्रचार और प्रसार किया है, कहते उसमें जो मूल स्रोत कौन है, कहते इसमें मूल स्रोत प्रभुपाद का है ही है। हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज भी उसमें एक विशेष है, जिन्होंने जिनको उपदेश दे करके उत्साह दे करके जिन्होंने उनको संन्यास प्रदान किया, इसलिए वे भक्ति प्रज्ञान केशव महाराज के लिए कहा करते थे, वैराग्य जुग भक्ति रसम प्रजत नैमा मनोभीक्षम कृपा बुद्धि जह परदुख दुखी केशव गोस्वामी आश्रया। उन्होंने
भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज बोला करते थे। इसलिए मानव से जो मूल उत्साह है ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज की इसमें मूल उत्साह है, जो संन्यास दे करके सर्वत्र स्वयं का प्रचार किए ही है और इनको द्वारा भी सर्वत्र उन्होंने प्रचार और प्रसार करते हैं। इसलिए अगर बोला जाए श्री चैतन्य मनभीष्टम, अगर यहाँ पर बोला जाए श्री प्रभुपाद मनभीष्टम स्थापितम जनभूतले स्वयं केशवम कदामह्यम ददाति स्वपदान्तिकम, ये कोई अतिथि नहीं है। इसलिए प्रभुपाद मानो इनको द्वारा संपूर्ण विश्व में केवल इतना नहीं, उनको बाद में भी उन्होंने तो मूल स्रोत रूप में किए थे, लेकिन इसी समय में अगर विचार किया जाए तो श्री केशवम मनभीष्टम स्थापितम जनभूतले स्वयं नारायणम गदामह्यम ददाति स्वपदान्तिकम, ये कोई अतिथि नहीं है। ये साक्षात रूप में ये आप लोगों को देखने पर, अगर ये चीज को आप लोगों को देखने पर ये आप लोग स्वयं ये चीज की अनुभूति कर रहे हैं, ये मूल सूत्र कैसे प्रभुपाद से और हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज, स्वामी महाराज और हमारे महाराज जी जिस रूप में प्रचार कर रहे हैं, ये कोई अतिथि नहीं है, एकदम जादुल्य एक बहुत बड़ी एक प्रमाण है। इसलिए आज ये महापुरुष का आज तिरुभाव महामहोत्सव है। इसलिए ये तिरुभाव को महामहोत्सव बताया गया। यद्यपि विप्रलंब रस तिरुभाव जो विरह को, विरह ही भजन का मूल है, जिसके लिए महाप्रभु कहते हैं नयनम गलदास उठाया वदनम गदगद रुद्धया गया पुलक लिखितम बपु कदा तव नाम ग्रहण भविष्यति। और जहां पर हमारे सारे शास्त्र में विरह की ही स्थापना करते हैं। महाप्रभु विप्रलंब रस आस्वादन करने के लिए इसी जगत में आए थे। इसी जगत में तो दिखाई पड़ते हैं जैसे हुए कि जगत को छोड़ कर गए, लेकिन तत्वतः क्या है? तत्वतः वे श्री राधा रानी का आदेश पर, महाप्रभु का आदेश पर इसी जगत में आए। जगत में महाप्रभु का मनभीष्ट को स्थापन करते हुए जब वे अपना नित्य भाव में, अपना नित्य सेवा में चले जाते हैं, यहाँ पर तो विरह दिखता है, लेकिन वहां पर क्या होता है? वहां पर एक मंजरी कैसे संपूर्ण इसी जगत में आकर के कितने कृष्ण विमुख व्यक्तियों को, कितने कृष्ण उन्मुख करके, कितने जीव को भगवत सेवा में लगा करके जब वे जगत को दिग्विजय करते हुए, हाँ, इसलिए ब्रह्मांड दायित्व शक्ति धारे जाने जाने, इसलिए कैसे हुई संपूर्ण ब्रह्मांड को कृष्ण भक्ति रूपी मंदाकिनी रस द्वारा कैसे प्लावित करते हुए जब वे उसी जगत में जाते हैं, वहां पर श्री महाप्रभु, उनका परिकर राधा रानी और कृष्ण उनको वहां पर बड़े स्वागत, बड़े अभिनंदन करते हैं। उन्होंने कितने बड़े काम करके आए, इसलिए उनको कहते हैं ये विरह महोत्सव है। विशेष पूर्वक रहा मतलब मिलन, जहाँ पर विशेष पूर्वक हुए राधा कृष्ण का नित्य सेवा में चले जाते हैं, इसलिए उनको विरह महोत्सव कहते हैं। कहते हर आचार्यों का एक एक विशेष वैशिष्ट देखने को मिला है, इसलिए इसी आचार्य का भी बहुत बहुत बड़े बड़े वैशिष्ट लोगों ने स्थापन किया। श्रीमन चैतन्य महाप्रभु जगत में जिस रस को देने के लिए आए थे, जिसको रूप गोस्वामी कहते हैं अनर्पित चरिचिराग करुणयावतीर्ण कलो समर्पित उन्नत उज्ज्वल रसायन स्वभक्ति श्रिया। इसलिए जो स्वभक्ति श्रिया स्त्री की जो देने के लिए आए थे, जब ये महापुरुष का हर क्रिया में, हर इनको इसी में यही चीज स्पष्ट रूप में वो स्थापन करते हैं। अभी कहते श्री चैतन्य मनभीष्टम स्थापितम जनभूतले, वे श्रीमन चैतन्य महाप्रभु का जो मनभीष्ट को इन्होंने स्थापन किया। अब ये चैतन्य महाप्रभु का मनभीष्ट क्या है? जब उन्होंने चार चीज को महाप्रभु का मनभीष्ट है। एक चीज था कहते श्री विग्रह प्रकाश है, ये उनका मनभीष्ट है। कभी भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ये गौड़ी संप्रदाय में एक जो रूपानुग धारा का एक बहुत बहुत बड़ी एक सुंदरता को स्थापन करते हुए गए। जो हमारा गौड़ीय वैष्णव है, हम जो अपना को रूपानुग कहते हैं, रूपानुग का मतलब क्या है? ये इन्होंने ये रूपानुगत्व के हर क्रिया में इन्होंने ये रूपानुगत्व को स्थापन किया, जिसके लिए प्रभुपाद ने बताया श्री रूपानुग विरुद्धाव सिद्धांत धंतहारिणी। जैसे उन्होंने रूपानुग जो विरुद्ध धर्म को उन्होंने खंडन करके उन्होंने जैसे शुद्ध भक्ति को स्थापन किया, ये भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज का जीवन में भी वही चीज को देखने के लिए मिलता है। जैसे उन्होंने ये विग्रह को स्थापन किया, जो कि हमारे किसी गौड़ीय मठ में ये सफेद विग्रह नहीं,
सारे विग्रह में वहां पर काले विग्रह है, लेकिन उन्होंने एक सफेद विग्रह को स्थापन किया, जिसको देख करके उनका गुरु भाई कुछ लोग बोले ये क्या सफेद विग्रह कम पैसा मिलता है, इसलिए उन्होंने ज्यादा पैसा, काला विग्रह ज्यादा पैसा, इसलिए उन्होंने सफेद विग्रह को स्थापना कर दिया। कुछ गुरु भाई ने तानाबाजी किया है, इसलिए उन्होंने ये सफेद विग्रह में कैसे रूपानुगत छुपा हुआ है, इसलिए उन्होंने ये चीज को स्थापना करने के लिए उन्होंने विनोद बिहारी अष्टक लिखे। और वो विनोद बिहारी अष्टक में वो कितने तीक्ष्ण बुद्धि थे और उनका दार्शनिकता, उनको विद्वता अगर देखना है वो ग्रंथ को अष्टक को पढ़िए। और उसी अष्टक को ऊपर में हमारे महाराज जी जो टीका किया है, अगर यह चीजें जब तक कोई नहीं पढ़ेंगे, हम लोग महाप्रभु का धारा में आए, हम लोग रूपांतर करें, ये चीजें हम नहीं बता सकते। इसलिए उन्होंने राधा चिंता निवेशन जैसे पिता श्री कृष्ण चरणों पर राधा लिंगत विग्रह, इसी श्लोक को उन्होंने राधाया लिखित, राधाया आलिखित, राधा लालित, इसलिए राधा द्वारा चिन्हित और राधा के द्वारा आलिखित। यह चीज को बताने के लिए उन्होंने जो सूक्ष्म रूप में बताए, हमारे महाराज इसका जो टीका लिखे, उन्होंने चैतन्य चैतामृत का मानो संपूर्ण सारा सपना उतार दिए। इसलिए महाराज उन्होंने उनको गुरु जी को जीवन के ऊपर में जो ग्रंथ लिखे हैं, इसको हम लोगों को विशेष पूर्वक अध्ययन करनी चाहिए। अगर हम हमारे महाराज जी का हृदय को अगर हम समझना चाहते हैं, महाराज का हृदय में क्या तेजड़ी है, क्या उनके हृदय में संपत्ति है, अगर यह चीज को समझना चाहते हो, जरूर ये अष्टक के ऊपर में महाराज जी का जो व्याख्या है इसको आप जरूर पढ़िए। और उनका दार्शनिकता को अगर देखना चाहते हो, उन्होंने एक एक श्लोक को द्वारा जो पढ़े, एक एक श्लोक में जो गंभीर चिंतन, केवल रस नहीं, केवल उसको अपने तत्व दर्शन, केवल रस नहीं तत्व दर्शन के ऊपर में रस की जो गंभीरता है, वह चीज को उन्होंने प्रकाशित किया। और महाराज उसको टीका में बड़े विश्लेषण पूर्वक उसको व्याख्या करते हैं। इसलिए पूरा उन्होंने बरहा पुराण और महा स्वप्न विलास का लीला, महाप्रभु का जो रायामांग संवाद को संपूर्ण रूप में वहां पर उदाहरण देते हैं। इसलिए उन्होंने ये श्लोक को स्थापन करके, क्योंकि हम गौड़ीय वैष्णव है, इसलिए भक्तिनाथ ठाकुर कहते हैं, आमित राधिका पक्षपाती सदा कपूर नाही हैरी ताकि, जे जन से जना जे भाव से भावे ठाके, आमित राधिका पक्षपाती सदा कपूर नाही हैरी ताके। ये रूपानुगत है। क्या यह रूपानुगत को हम क्या चाहते हैं? श्याम सुंदर, हाँ, राधा रानी कृष्ण का चिंता करें, ये गौड़ी वैष्णव नहीं चाहते। गौड़ी वैष्णव ये चाहते हैं हमें राधा रानी कृष्ण का चिंता दुखी नहीं, कृष्ण राधा रानी का चिंता करें। इसलिए जहाँ पर श्याम सुंदर स्वयं राधा रानी का चिंता करते 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 संपूर्ण रूप में उनको भाव में डूबते हुए निकली कला में वो गौर कांति को धारण किया है। इसलिए मानव इन्होंने ये विग्रह का स्थापन करते हुए उन्होंने रूपानुगत को स्थापन करते हैं। और उनका नाम जो भक्ति प्रज्ञान है, क्या नाम? कहते भक्ति प्रज्ञान है। कहते भक्ति की विशेष ज्ञान है। कहते भक्ति का विशेष ज्ञान क्या है? कहते भक्ति का विशेष ज्ञान प्रेम है। कहते प्रेम का चरम क्या है? अगर स्नेहमान करते करते राम जहाँ पर भाव अनुभव जहाँ तक बैठता है, प्रेम का अंतिम जहाँ पर राधा की भाव है। इसलिए ये भक्ति प्रज्ञान मतलब भक्ति के एक उन्नत उज्ज्वल रस की मूर्तिमान है। इसलिए उन्होंने गौड़ीय वेदांत समिति को भी स्थापना करते हुए उन्होंने यही चीज को उन्होंने स्थापन किया है। इसलिए गौड़ीय वेदांत समिति मतलब जहाँ पर वेद का अंत, जहाँ पर श्रीमद् भागवत, जहाँ निगम कल्पतरु गलितम फलम और सारे सन्यासी का नाम भी भक्ति वेदांत, भक्ति वेदांत। इसलिए वास्तव रूप में ये भक्ति वेदांत का जो तात्पर्य है, जिसको पहले आचार्यों ने साधारण लोगों का धारणा है, ये वेदांत मायावादियों का ग्रंथ है। मायावादी क्योंकि उसमें शंकर भाष्य है, सब लोग जानते हैं, मायावादियों का ग्रंथ है। लेकिन वेदांत का जो असली तात्पर्य क्या है, इसलिए भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज यह चीज को, ये गौड़ीय वेदांत समिति और उस सारे सन्यासी का नाम उन्होंने वेदांत नाम करके नहीं, वेदांत का अगर असली इसका अधिकार है वेदांत ग्रंथ में, ये वैष्णव का है। और वैष्णव में इसलिए महाप्रभु आने से पहले जो उसके ऊपर में दूसरे आचार्यों को जो भाष्य था, केवल दास्य रस तक उन लोगों ने दिखाया। लेकिन महाप्रभु का परिवारों ने, श्री बलदेव प्रभु हमारे गुरुवर्गों ने वहां पर उन्होंने श्रृंगार रस तक दिखाया।
इसलिए जन्मादस्य जतः मतलब क्या? आद्य रसः जन्म जतः, जिनसे आदि रस का प्रकट होता है। तो वो कौन है? आदि रस के मूल अधिष्ठान देवी कौन है? रास्ते रासेश्वरी कौन है? कहते श्रीमती राधा रानी है, जिनसे ही सारे रस की प्रकटता है। इसलिए ये गौड़ीय वेदांत समिति को स्थापन करते हुए, इसलिए ये निगम कल्पतरु गलितम फलम, इस श्रीमद् भागवत का सारांश किया, जहाँ पर कृष्ण उद्धव को द्वारा उन्होंने भेज करके, जहाँ पर वंदे नंद ब्रज स्त्रीना पाद रेणु अभिस्नक्ष, जहाँ पर आसाम और चरण रथ बोल करके, जहाँ पर उद्धव को द्वारा भगवान ये ब्रज प्रेम को ही और उसमें गोपी प्रेम को सर्वतोमुख बताते हैं। इसलिए जहाँ पर भक्ति वेदांत शब्द प्रयोग करते हैं, जहाँ पर केवल उन्नत उज्जवल रस ही जहाँ पर दिखाई पड़ता है और वहाँ पर कुछ दिखाई पड़ता ही नहीं। इसलिए ये चीज को हमने स्थापन किया है। और शुद्ध ग्रंथ महाप्रभु का जो था शुद्ध भक्ति सदाचार ग्रंथ, इसलिए भक्ति प्रज्ञा केशव गोस्वामी महाराज उन्होंने बहुत सारे शुद्ध ग्रंथ रचना किया है और उसमें भी एक अलग अलग वैशिष्ट स्थापन किया। जो तुलसी आरती है उसमें पहले जो गौड़ीय बैठ में गाते हैं नमरे नमरे भैया नम नारायण, वहां पर भैया शब्द आती है तुलसी मैया, लेकिन हम जिस श्रृंगार रस उपासक वहां पर भैया शब्द की कोई स्थान नहीं, वहां पर तो सब सखी है, तो भैया शब्द कहां? तो इन्होंने वो चीज को धारा उन्होंने अभी भी दूसरे गौड़ीय मठ में गाते हैं, लेकिन केवल गौड़ीय वेदांत समिति में उन्होंने जो तुलसी कीर्तन उन्होंने लिखा, पता नहीं कहाँ ग्रंथों से उन्होंने सार चीज को लेकर के उन्होंने ये तुलसी कीर्तन उन्होंने जो लिखा है, केवल ये गौड़ीय वेदांत समिति में ही उपलब्ध, और कहीं चीज उपलब्ध नहीं है, केवल गौड़ीय वेदांत समिति में। इसलिए और हमारे जो मंगला है उनका जो कहते ये दूसरे मठ में जय राधा कृष्ण कोई गा लेते हैं, कोई श्री कृष्ण चैतन्य महामंत्र गा लेते हैं, केवल ये गौड़ीय वेदांत समिति में ही है जहाँ पर मंगल श्री गुरु गौरव मंगल मूर्ति मंगल श्री राधा कृष्ण जुगल प्रीति, जहाँ पर संपूर्ण गोविंद लीला में महाराज बता रहे थे और कृष्ण भावनामृत, अगर सही वह इस ग्रंथ को कोई पढ़े, अगर सवेरे को कीर्तन को कोई करे, शाम को उसके हृदय में संपूर्ण गोविंद लीलामृत और कृष्ण भावनामृत ही, कैसे राधा कृष्ण का जो निशांत लीला और कैसे ब्रज गोपियां कैसे मंजरियां उनको जगाते हैं, कैसे वहां का परिवेश, अगर कोई थोड़ी सी चिंतन पूर्वक को कीर्तन करे, समझो ये साधन भजन की एक बहुत बड़ा पद है। उन्होंने ऐसे एक कीर्तन लिखे हैं। अब प्रभुपाद का उन्होंने भी एक आनंद लिखे जो एक अनुभव दिख रहे। प्रभुपाद उन्होंने क्या उन्होंने किया है, उन्होंने पंचप्रति उन्होंने ये जो चीज को प्रभुपाद का संपूर्ण प्रभुपाद का जीवनी और संपूर्ण उनको जो क्रिया को, जैसे हमारे भक्ति श्रीधर गोस्वामी महाराज जिसमें सृजनार पाद युगम जो उन्होंने कीर्तन लिखा, मानो हमारे केशव गोस्वामी महाराज ये बंगला कीर्तन वो तो संस्कृत है, लेकिन मानो ये बंगला कीर्तन में प्रभुपाद का जीवन को संपूर्ण रूप में सामने में ला दिया, संपूर्ण रूप में जीवन को उन्होंने पूरा बता दिया, कैसे उन्हें जीवन में क्या उन्होंने किया है, मानो ये प्रभुपाद आज से ले दिया। और इनका एक ग्रंथ मायावती रचना है, जो कि भक्ति जगत में जितने सारे आचार्य लोग हैं, रूप गोस्वामी तक भी जब भक्ति रसामृत ग्रंथ लिखते हैं, वहां पर मुक्ति स्त्रिया पिशाची जावत मंगलाचरण की चीज को देते हैं। कहते क्यों? कहते भक्ति जगत में अगर सबसे कोई बड़ा बाधक है, कहते मायावाद है, ब्रह्मवाद है। इसलिए हमारे भक्ति प्रज्ञान केशव गोस्वामी महाराज ये एक आचार्य का काम करते हुए उन्होंने मायावादी जीवन लिखा। बहुत लोग मायावादी जीवन पर इधर उधर करते पड़े होंगे, लेकिन उन्होंने जो एक अलग रूप को देते हुए सर्वप्रथम मायावादी रावण बड़ा था सबसे, ये मायावादी था जो कि सीधा भी अपहरण करने चाहता था। जब इसका एक लेख किसी तरह से हमारे हरिद्वार में हमारे कोई पत्रिका में छपाया हुआ था, किसी मायावादी आश्रम में केवल उनका जो निकलता था उसको थोड़ी सी कोई एक लेख पहुंच गया। आप सोच नहीं सकते कि बिगड़ गए मायावादी लोग और उन्होंने क्या लिख कर मथुरा बदल कर मिले, जो महानगर पहुंचा के दूसरे के पास पहुंचा रहे। मतलब इनका थोड़ी सी एक लेख पढ़ते ही मायावादी लोग भड़क गए, उनके शरीर में आग लग गया। मतलब इन्होंने इतने जोर जबरदस्त रूप में इन्होंने मायावादी को खंडन किया है। इसलिए जितने सारे आचार्य का जो एक दिव्य एक वैशिष्ट है, जब ये आचार्य के जीवन में ये सारे के सारे वैशिष्ट इनका जीवन में मिलता है। और उन्होंने संपूर्ण विश्व भर में और उन्होंने जो गौड़ीय मठ स्थापन किया, देवानंद गौड़ीय मठ,
इनका जो बुद्धि है, इनका जो दिमाग का ये है, वास्तव रूप में उन्होंने जो गौड़ी मठ का जो रूप दिया है, उन्होंने रखा देवानंद गौड़ी मठ। हाँ, और वहां पर तोरण में उन्होंने लिखा ये कौन सा तोरण है, तो नारायणी तोरण। उनका दिव्य भावना देखो, और उसको महाराज ने चीज को बताए अच्छी तरह से। नारायणी तोरण मतलब अगर कोई भगवत भक्ति जगत में प्रवेश करना चाहते हैं, सर्वप्रथम भगवत भक्ति में बल क्या है? सर्वप्रथम भगवत भक्ति में बल है, महाराज बारंबार ये चीज को बताते हैं, गुरु निष्ठा। जिसको जितने गुरुदेव के चरण में जैसे देव पराभूति जथा देवे तथा गुरु तसे भी कट्टा करता प्रकाश में महात्मा। इसलिए भगवत भक्ति जगत में गुरु भक्ति उसमें नींव है। इसलिए अगर भक्ति में भी प्रवेश करना चाहते हैं, आदो गुरु पदार्थ है। इसलिए उन्होंने नारायणी तोरण में बताया, अगर भक्ति जगत में प्रवेश करना चाहते तो गुरु करना आश्रय है, और उनको निष्ठा ही भक्ति बल है। गुरु कर्तव्य क्या करेगा, वहां पर लिखे उन्होंने, परम विजय दे श्री कृष्ण संकीर्तना करेगा। क्या कहते भगवत कीर्तन गुरु ये नहीं बोलेगा तुम मेरा सेवा करो, गुरु उनको भगवत भक्ति में लगाएगा, भगवत भजन में उसको लगाएगा। तो भक्ति में सबसे बड़ा बात क्या है, कहते वैष्णव अपराध है सबसे बड़ा। इसलिए उनको हमारे सारा गोस्वामी महाराज 62 गजेंद्र सिंह उन्होंने ये उपाधि किया है। इसलिए ये उपाधि में विभूषित किया है। इसलिए उन्होंने पहले दिखाया कैसे मधुवाला हाथी में कैसे ये वैष्णव अपराध है। महाप्रभु जिसको रूप गोस्वामी को जहां पर बताते हैं, यदि उठे माथी हाथा ऊपर से सीधे दिए छोड़ जाए पाता। इसलिए भक्ति जगत में सबसे बड़ा जो खतरनाक वैष्णव अपराध है, वहां पर वैष्णव अपराध दिखाया। और वहां पर जो गेट में जो दोनों खड़े हुए, वहां पर दिखाया भागवत का जो तात्पर्य जगत भगवत भक्ति। अगर भगवत भक्ति को अगर व्याख्या नहीं करते हैं, देवाल को गौड़ी मठ रखेगा महाप्रभु भागवत 8 जी, ऐसे भागवत की जरूरत नहीं जिसमें भगवत भक्ति नहीं दिखाया। इसलिए अंदर में प्रवेश करते ही उन्होंने रखा जहां पर सर्वप्रथम उन्होंने लगा छापा खाना, और जहां पर ग्रंथ पुस्तक आदि जहां पर निकलता है, इसलिए उनका नाम उनका परमार्थ खंड है, जिसको बताया उन्होंने वैकुंठ वार्ताव। जिस ग्रंथ में सखात वैकुंठ से ही भगवत जगत से ही वो वार्ता कैसे बहते हुए आकर के और बृहद मृदंग रूप में संपूर्ण कैसे चतुर्दिक ये करना है। इसलिए उन्होंने रखा उसको परमार्थ खंड। उसको बाद में रखा फिर कीर्तन खंड, जहां पर नित्य निरंतर जहां पर महाप्रभु कथा महाप्रभु का कीर्तन होता है। उसको बाद में उन्होंने रखा उपास्य खंड है। इसलिए उपास्य खंड में उन्होंने अपना सिद्ध स्वरूप को भी इंगित किया है। इसलिए महाराज के सामने में उन्होंने अपना सिद्ध स्वरूप को भी मंदिर बना करके कैसे 3 सीढ़ी बनाए। पहला सीढ़ी का जो रंग मतलब नील वर्ण होनी चाहिए, दूसरे सीढ़ी का रंग होनी चाहिए हल्दी वर्ण होनी चाहिए, पीला वर्ण, और तीसरे सीढ़ी उन्होंने बोले गुलाब रंग की होनी चाहिए। कभी महाराज और मुनि महाराज ने प्रश्न किया ऐसे क्यों, तो उन्होंने बोले पहला जो रंग है वो वे नील कांति स्वरूप से कृष्ण का वर्ण है, दूसरे जो रंग जो पीला रंग वो उन्नत उज्जवल रस की मूर्तिमान स्वरूप श्रीमती तप्त कांचन श्री राधा जी का स्वरूप। बोले ये रंग क्या है, जो गुलाल रंग सुनते ही भाव विभोर हो जाते हैं। तो वो बोलते हैं उनको विनोद देने वाले, हाँ उनका अनुराग के रंग में रखते हुए इनको जो विनोद प्रदान करते हैं लोग, ये रंग। उसी समय तो उन्होंने अपना सिद्ध स्वरूप भी इंगित दिया। महाराज बोलते हैं उन्होंने उसी समय जो सही शिष्य होता है उनको भाव को पकड़ लेते हैं, पकड़ करके किसी न किसी रूप में सिद्ध स्वरूप बताते हैं, लेकिन उनको ऐसे शिष्य होने चाहिए जो इसको पकड़े। इसलिए बाद में हमारे महाराज भी तब उनको स्वरूप को उन्होंने स्थापन किए, जब ये राधा कृष्ण को विनोद करने वाले ये विनोद में देंगे। और उसने 9 विशिष्ट को स्थापन करते हुए जिसको प्रहलाद महाराज श्रवण कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्य सख्य आत्मनिवेदनम। 9 भक्ति ही भक्ति जगत का कैसे मूल है। और उसमें जो 4 संप्रदाय उन्होंने ऊपर रामानुज मध्व विष्णु स्वामी निकाल को उन्हें 4 संप्रदाय को भी उन्होंने प्रकट किया है। आचार्य प्रवर्तक को वहां पर बताए संप्रदाय विज्ञान मंत्रास्त्र विफला मता अतः कलो भविष्य चतुरा संप्रदाय। अगर कलयुग में जिसको भगवत भक्ति करना तो 4 संप्रदाय में कोई एक संप्रदाय में अंतर्मुक्त होकर के उनको भगवत भक्ति करनी चाहिए। इसलिए संप्रदाय अंतर्मुक्त होकर के उन्होंने ये चीज को स्थापन किया। उन्होंने 10 अवतार भी कैसे प्राणी का क्रम विकास को नहीं दिखाया।
इसलिए जहां पर उपवास का खंड उन्होंने स्थापन किया, जहां पर उन्होंने गोवर्धन खंड स्थापन किया, फिर गोवर्धन कौन है? फिर जहां पर गैया रहती, गौशाला है, उसको गोवर्धन खंड। जहां पर गोसाई ठाकुर जी का बनता है वहां पर पाठशाला है, जहां पर श्री ईश्वरी राधा रानी श्याम सुंदर के लिए जहां पर गोसाई बनाती है। और उन्होंने एक ज्ञान खंड नाम रख दिया। हाँ, ज्ञान खंड कहाँ पर है? कहते उन्होंने पायखाना, जहां पर लाठी करके उसका नाम उन्होंने ज्ञान कर रहे। मतलब उन्होंने कहीं उन्होंने स्थापन किया बना दिया, सभी अगर ब्रह्म है विष्णु भी ब्रह्म है। इसलिए उन्होंने ज्ञान को भगवत भक्त से ज्ञान को उन्होंने ज्ञान का कोई स्थान नहीं, इसलिए उन्होंने ज्ञान को स्वीकार करते हुए उन्होंने पायखाना स्थान को बोलते ये ज्ञान कर रहे। इसलिए और जो दूसरे तरफ में जो गेट है उनका नाम रखा कि मदन मोहन गेट है, इसका नाम उन्होंने रखा मदन मोहन गेट। मतलब अगर कोई सद्गुरु चरणाश्रय करते हुए, गुरु जी का अनुगत्य करते हुए अगर सही सही रूप में भगवत भक्ति करे तो उनका प्रवेश कहां पर निकलेगा, कहां पर? इसलिए कहते हैं साक्षात आविर्भूत सौरिस मेहमान को काम जब पीताम्बर धर सर्गी साक्षात मनमत मनमत। जैसे साक्षात कृष्णा ब्रज गोपियों का अंदर में जैसे मनमत का मनमत रूप लेकर के भगवान प्रकट होते हैं, अगर उसी तरह अगर कोई रूपानुग गुरु वैष्णव का अनुगत्य करते हुए ये गुरु का अनुगत्य में सारे भक्ति का अभिगाचन करेगा तो एक दिन उनको उन्नत उज्जवल रस का जो स्त्री है, जो माधुर्य उसको प्राप्त होगा। इसलिए सब उनका दास्तव्य की सब वस्तु उनका, इसलिए आज उनका तिरुभाव तिथि, इसलिए हम शरण प्रार्थना करते हैं आप जिस चीज हमको देने के लिए आप आए और इंगित रूप में जिस चीज आप हमें दिए हैं, इसलिए आप कृपा कीजिए जैसे कभी ना कभी उसका एक बूंद भी सिर्फ महाराज का आधिपत्य में कभी ना कभी स्पर्श करके हमें सौभाग्य Very good. He has remembered me now so many things. So many things. He remembers I am forgotten, but he remembers.